Continuation of the lesson, page number 44, last paragraph. Continuation, page number 44, last paragraph. I am going to read the lesson for you because I believe that you will not read the lesson, that's why. The lesson is a typical one, I have already told you that, so you have to read the lesson as it is so tough. Based on your calculation, you have to read the lesson. If you want to collect some points, from the lesson, you have to be careful. कहानी सुनने और ट्रांसलेशन सुनने बैठा है तो you will get nothing from this. Deep reading is necessary, so try to read according to your wisdom. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four. It is important. Fisheries, forest, grassland and croplands. ये तो लेस्टर और ब्राउन के हिसाब से उनके किताब का नाम ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है. तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में ये बताया है अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रिंसिपल है इम्पोर्टेंट, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. खाने को छोड़ के बाकी सारे रॉ मटेरियल्स हमें देता है अन्य चीज़ों के लिए. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level. ऐसा स्तर जो कायम नहीं रह सकता है. ये पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड. व्हेन दिस हैपेंस, फिशरीज कोलैप्स, forests disappear, grasslands are converted into barren wasteland, and croplands deteriorate. Deteriorate means क्वालिटी कम होगी, fall in quality. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. मछली ज़्यादा पकड़ा जाता, फॉरेस्ट काटा जाता है. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. ऐसा जगह में जो फायरवुड इतना महंगा है तो जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करें. अब तो सब होने वाला है क्योंकि 1000 के आसपास आ गए एक सिलेंडर का कॉस्ट. तो लकड़ी लाना चाहें तो वो भी इतना कॉस्टली. जो माल पकाना है वो अभी मुसीबत में पड़ जाएगा. जितना हम पका के खाना चाहते हैं उतना तो होगा ही नहीं, लेस क्वांटिटी यूज़ करना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम इज़ देयर. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोस अंडर द पोट. बर्तन के नीचे क्या जलाएगा, न कोस्ट मोर दैन व्हाट गोस इनसाइड इट. उसका अंदर जो रखा है, मतलब जो चावल पकाने, एक किलो चावल पकाना है, 70 रुपये का 1 किलो चावल है, तो उसको पकाने के लिए 150 रुपये का लकड़ी इस्तेमाल करें तो पकाए क्या, खाए क्या. ये आजकल जो गैस का मोदी ने किया ना, वो जो 1000 के नज़दीक पहुंच गया रसोई गैस. बहुत घोषणा किया था गृहिणी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा सस्ता सिलेंडर देंगे. कहाँ दिया, यही
आप सोचो इसके बारे में. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. जैसे फॉरेस्ट काटने की बात बता दिया, लोग फॉरेस्ट काटते रहें तो उसमें रहने वाला प्राणी गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. इधर it will die or it will go to or move to other place. It has been well said that forests precede mankind. मनुष्य से पहले फॉरेस्ट आता है, डेजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद डेजर्ट आता है. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बस एरोड होते हैं, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होते जा रहे, गायब होते जा रहे, निकाल के ले जाते हुए नज़र आ रहे. एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dungs or burning deprives the soil of an important natural fertilizer. And the World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel demand in the year 2000. और जितना लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है और वो पर्याप्त नहीं मिल पाते. James Spethett, the president of the World Resource Institute, said the other day means recently, अभी मतलब ये किताब लिखने के आसपास के समय की बात है. We were saying that we are losing the forest at an acre a second. कहता है हमारा जंगल सेकंड में इतना कम होते जा रहे, बट इट इज़ मच क्लोजर टू an acre and a half to a second. लेकिन पहले 1 एकड़ होता तो अभी 1.5 एकड़ के हिसाब से उस समय तो इतना ही था, लेकिन अब हकीकत में इतना ही हो रहे. आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडीवर ने कोशिश करना to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of our country. ये सब कुछ फॉरेस्ट भी बचाना, वाइल्ड लाइफ भी बचाना है, सब बचाना है, लिखा है. बट वाट causes endless anguish is the fact that laws are never respected for enforced in India. परेशानी की बात यही है, कानून तो उधर है लेकिन उसको सही से इस्तेमाल नहीं करता है. ना तो सरकार परवाह करता है, ना तो इंसान उसका परवाह करता है. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. कहता है, और casteism, untouchability, छुआतू and bonded labor, गुलामी में रह के लोगों से काम कराना, ये सब कुछ खत्म करना है. But they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. Constitution का आगमन के इतना साल के भीतर ये कुछ भी नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे, कोई ये नहीं. रूल तो उधर है लेकिन उसको तो कुछ भी फॉलो नहीं करता. ये रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमिटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन. कैटास्ट्रोफिक है ना भयानक, डिप्लीशन है रिडक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades. इसमें बताया हिंदुस्तान का फॉरेस्ट कितना कम होते जा रहे हैं. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acre in a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. जो फॉरेस्ट लैंड कहते हैं आजकल देखा जाए तो उसमें नाम तो फॉरेस्ट है लेकिन पेड़ कम है. द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times इन द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स. सरकार के कैलकुलेशन के आधार पर जो संख्या दे रखा है उसके 8 गुना कम में अभी फॉरेस्ट की स्थिति इस स्थिति में पहुंच गई. अभी यही अभी का स्थिति है. अब इस स्थिति से सुधरने के लिए करना क्या होगा, सोचना पड़ेगा, कानून को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ कमियाँ आते हैं उसको पूरा करने का तरीका सीखना पड़ेगा. जो सिस्टम चलते आ रहे उसी सिस्टम को फॉलो करने से तो काम तो होगा ही नहीं.
फॉरेस्ट को तो काटना भी पड़ता है, रेलवे का पटरी बनाने, फर्नीचर बनाने, तो इसका ज़रूरत है ही। तो कोई बात नहीं, जितना काटते उतना पहले से लगाओ, तो वो काम होना चाहिए। फॉरेस्ट एरिया जितना है उसको मेंटेन करने के लिए सीखो, लेकिन उसके लिए तो जब सरकार को ज़रूरत पड़ता है काट के अलग कर देते हैं, दूसरा लगाते नहीं है। तो कोई स्कूल वाले बच्चों को बुला के पेड़ पौधे लगा दो, पर्यावरण दिवस है, तो ऐसा करने से कुछ नहीं चलेगा। सरकार को इसके बारे में जागरूक होकर काम करना पड़ेगा, ऐसा नकली काम तो नहीं चलेगा। ऐसा एक सरकार आ जाए और सारी बातों को सही तरीक़े से इस्तेमाल करके, रूल को सही फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन जो बताते हैं उसी के हिसाब से चलाने वाले एक सरकार आ जाए तो देश में बदलाव आ जाए, वरना तो इस तरह का नुकसान होते रहेगा तो सहना पड़ेगा।